اس احاطہ میں تین اہم چیزیں ہیں۔ وہ درخت جس پہ موسیٰ علیہ السلام نے روشنی دیکھی تھی، اور اس درخت کے اندر سے آواز آئی، موسیٰ میں اللہ ہوں، اننی انا اللہ۔ 3500 سال گزر چکے ہیں، وہ درخت الحمدللہ یوں ہی ہرا بھرا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا لکھا ہوا خط یہاں موجود ہے۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ کنواں ہے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے پانی لیا تھا۔ اللہ کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑ کے اوپر قیام کیا تھا۔ یہ بہت السلام علیکم، میں اس وقت ہوں موجود مصر میں، اور یہ جو میرے آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں سینٹ کاترین کا چرچ ہے۔ اس کے اندر مسجد بھی ہے۔ علاقے کے رہنے والے لوگ تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے خط لکھ دیجئے کہ جس سے ہماری حفاظت ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کا لکھا ہوا خط یہاں موجود ہے، اور ایک وہ درخت یہاں موجود ہے جس پہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے بات کی تھی، اور اس درخت سے روشنی آ رہی تھی جس کا ذکر قرآن میں ہے، اور وہ درخت بھی 3500 سالوں سے ایسے ہی ہے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے۔ المقدسة التي رآها سيدنا موسى كنارا داخل الدير، وكذلك الكنيسة التي سميت باسم القديسة كاترين أيضا داخل الدير، وكذلك المسجد داخل الدير. فهيا لنلحق، لأنه الدير سوف يغلق بابه الساعة 11:10 بعد نصف ساعة، حتى نتجول داخله لنرى كل الأشياء. فبداخله مكتبة ترون فيها. یہ جو آپ احاطہ دیکھ رہے ہیں، اس احاطہ میں تین اہم چیزیں ہیں۔ نمبر 1، وہ درخت جس پہ موسیٰ علیہ السلام نے روشنی دیکھی تھی اور اپنی اہلیہ کو لے کے جا رہے تھے، تو اپنی اہلیہ سے کہا تھا کہ یہاں ٹھہرو، مجھے آگ دکھائی دے رہی ہے، میں وہاں سے آگ لے کر کے آتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے تو اللہ نے فرمایا کہ فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، موسیٰ اپنی جوتیاں اتار دو، آپ ایک مقدس وادی طویٰ میں آئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، یہاں کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہے، آواز سنائی دے رہی ہے۔ کچھ اور آگے بڑھے تو وہ درخت جس پہ اللہ رب العزت کا نور ہی نور تھا، روشنی چمک رہی تھی، اس درخت کے اندر سے آواز آئی، موسیٰ میں اللہ ہوں، اننی انا اللہ، اے موسیٰ میں اللہ بول رہا ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ میری عبادت کریں اور میرے یاد کے لیے آپ نماز کو قائم کریں۔ وہ درخت آپ دیکھیں گے 3500 سال گزر چکے ہیں، 3500 سال گزر چکے ہیں، وہ درخت الحمدللہ یوں ہی ہرا بھرا ہے۔ نمبر 2، اس کے اندر ایک مسجد ہے، وہ 1000 سال پہلے المعز لدین اللہ جو مملوک بادشاہوں میں سے ہوا ہے، وہ اس بادشاہ نے اس مسجد کو تعمیر کیا تھا۔ تو مسلمانوں کے حوالے سے یہ مسجد یہاں ہے، یہودیوں کے حوالے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ درخت ہے، اور سینٹ کاترین جو اسکندریہ میں رہا کرتی تھیں، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین قبول کیا تھا، ان پر ایمان لائی تھیں، تو وہاں کے رومیوں نے ان پہ ظلم ڈھایا، تو اسکندریہ سے وہ چل کے یہاں آئیں اور یہیں ان کا وصال ہوا۔ ان کی یاد میں ایک گرجا گھر بنا دیا گیا ہے، انہی کے نام سے سینٹ کاترین یہاں موجود ہے۔ اب خاص بات جو شیخ احمد نے بتلائی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے لوگوں نے مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک خط لکھوا لیا تھا، ہماری حفاظت کے لیے ایک خط لکھ دیجئے تاکہ اس علاقے میں ہم محفوظ رہیں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا لکھا ہوا خط یہاں موجود ہے۔ آپ کو راستے میں بتایا گیا تھا کہ جس زمانے میں اسرائیل اور مصر کی جنگ ہوئی تھی، اس زمانے میں مصر کی مسلم فوج نے اس کی حفاظت کی تھی۔ پوری دنیا پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو جائے گا، مگر مسلمان اس کے اوپر قبضہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے نبی کا دیا ہوا عہد نامہ یہاں موجود ہے، وہ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو تینوں باتیں سمجھ میں آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس لاٹھی کو پھینک دو، اور موسیٰ علیہ السلام نے اسی مقام پہ اس لاٹھی کو پھینکا تھا تو وہ لاٹھی سانپ بن گئی تھی۔ پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، اے موسیٰ آپ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھیے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ جب اپنی بغل میں رکھا تو تخرج بیضاء من غیر سوء، بغیر کسی بیماری کے وہ چمک دمک رہا تھا، اس حال میں آپ کا ہاتھ اندر سے نکلا۔
अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे लिए ये दो निशानियां हैं, ये आसा लेकर और ये रोशन हाथ जो आपका बगल में रखने के बाद निकलता है, इन दो निशानियों को लेकर के आप फ़िरौन के पास जाइए। उसने बड़ी सरकशी बर्पा कर रखी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ दुआ मांगी थी इसी मकाम पर, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली हारून अख़ी। ऐ मेरे रब, मेरे सीने को खोल दीजिए और मेरे काम को आसान कर दीजिए, मेरी ज़बान में जो गिरह लगी है उसे भी खोल दीजिए, और मेरा एक मददगार मेरे अहल में से मेरे भाई हारून को बना दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इन तमाम दुआओं को कबूल फरमाया। हज़रत हारून उस वक्त मिस्र में थे और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ अकेले थे। जब यहाँ से पहुँचे हैं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके भाई से इस हाल में मिलवाया कि हज़रत हारून को अल्लाह ने नबूवत अता कर दी थी। उनके भाई ने नबी की हैसियत से उनका इस्तकबाल किया। फिर उन दोनों ने यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम ये दोनों फ़िरौन के पास जाते हैं। फिर वहाँ जो कुछ वाक़या पेश आया वो आपको बाद में बताया जाएगा। तो ये दरख्त बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। अंग्रेज़ी में इसको बर्निंग बुश कहते हैं और अरबी में ये शजर है ही। इस पर दो चौड़े मीनार नज़र आ रहे हैं। वो सामने वाला जो मीनार है वो उस मस्जिद का है जो अब से तकरीबन 1000 साल पहले बादशाह अल-मुइज़्ज़ लिदीनिल्लाह जो फ़ातिमी बादशाह हुआ करते थे, फ़ातिमियों में से अल-मुइज़्ज़ लिदीनिल्लाह बादशाह ने 1000 साल पहले मस्जिद बनवाई थी और उसका ये मीनार है। और ये जो आप मीनार देख रहे हैं उसके मद्दे मुकाबिल ये चर्च का मीनार है। सेंट कातरीन का जो चर्च है आगे देखेंगे आप, ये उसका मीनार है। उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से आते हैं और मदियन आ जाते हैं। और इस मकाम के ऊपर जो दूसरी तस्वीर है, ये मदियन में वो कुआं है जहां हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां अपने बकरियों को पानी पिला रही थी। लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आए और आने के बाद उन्होंने उस बड़े से पत्थर को हटाया और मूसा अलैहिस्सलाम की बेटियों को पानी, उनकी बकरियों को ताज़ा पानी पिलवाया। ये कुएं का वाक़या है ये। उसके बाद ये मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी तस्वीर दिखाई गई है। उसके बाद ये मूसा अलैहिस्सलाम आते हैं, तवज्जो दीजिएगा, ये बकरियां हैं मूसा अलैहिस्सलाम चरा रहे हैं और यहाँ पर वो बर्निंग बुश आपको दिखाई दे रहा है। ये जो आग सी है आग, हालांकि ये दरख्त है। जो दरख्त आपने वहां देखा है उसकी अक्कासी यहाँ पर की गई है। इस दरख्त के अंदर से रोशनी बहुत ज्यादा नमूदार हुई थी और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया को कह के आए थे कि तुम यहीं रहो, हम आग लेकर के आते हैं। देखिए मूसा अलैहिस्सलाम चप्पलें उतार रहे हैं यहाँ पर, तस्वीर के जरिए समझाया है। अल्लाह की आवाज आई थी फखलाना अलैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी चप्पलें यहाँ पे उतारी और आगे बढ़े तो यहाँ लेने आए थे आग और अल्लाह ने क्या दे दी? नबूवत। आग लेने आए थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको नबूवत से सरफराज किया। वो वाक़या जो मैंने आपको वहाँ सुनाया है वो दरख्त वाला, वो इससे आप समझिए। फिर यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम आ जाते हैं फ़िरऔन के मद्दे मुकाबिल, ठीक है, मुकाबला होता है। ये पूरा तस्वीर के जरिया से। अब इसके बाद आप जरा कुआं देखिए, थोड़ा सा रास्ता दीजिए मुझे। Come from under the ground here which باللغة العربية يا حبيبي نعم। النبي موسى هنا أتى من البير بالماء। शेख फरमा रहे हैं कि ये वो कुआं है जहां से मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी लिया था। ये समझें कि दो कुएं अलग अलग हैं। एक वो कुआं है जहां हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियों की बकरियों को पानी पिलाया था, वो अलग है, वो तो मदियन में है। ये कुआं भी ऐसा है जहां से मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी लिया था। आप यहाँ तशरीफ लाए थे इसी दरख्त के पास, नबी बन गए तो यहाँ पर एक कुआं था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ से इस कुएं से पानी हासिल किया था। इसकी नौइयत अलग है, उस कुएं की नौइयत अलग है। 30 रातें गुजारने के लिए तन्हाई में अल्लाह ने मुझे यहाँ बुलाया है और पूरी की पूरी कौम बनो इसराइल अपने बड़े भाई हजरत हारून के हवाले कर दी कि आप इनकी इस्लाह करते रहें, इनकी निगरानी करते रहें, इनको दीन समझाते रहें। मूसा अलैहिस्सलाम हजरत हारून के हवाले करके पूरी कौम बनो इसराइल उनको छोड़ के आप इस पहाड़ के ऊपर आ गए। कितनी रातों का वादा था? ववाअदना मूसा 30 लैला, हमने मूसा से 30 रातों का वादा किया। मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ जब तशरीफ़ लाए और 30 रातें पूरी होने वाली ही थी कि अल्लाह की तरफ से हुक्म ये आया कि ये मूसा 10 रातें तुम्हें और मज़ीद गुजारनी हैं। 30 रातों का वादा वहाँ से करके आए।
यहाँ 10 रातों का इजाफा अल्लाह ने और कर दिया। किसी शख्स को भी यहाँ आने की इजाजत नहीं थी, तन्हाई मतलूब थी, तो कोई शख्स वहां से आकर हजरत मूसा से पूछ भी नहीं सकता था आप कहाँ हैं, किस हाल में हैं। 10 रातों का इजाफा हुआ तो 31वें दिन हजरत मूसा की तलाश जारी हो गई। बनु इसराइल ने कहा कि वो कहाँ चले गए, कहा कि उनका रब उन्हें मिला नहीं, गायब हो गया उनका रब, क्या करना है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब नहीं पहुंचे वक्त पर वहां, तो बनु इसराइल 3 तबकों में तकसीम हो गए। ये है सुनने की बात। पूरे बनु इसराइल जो 6 लाख इंसान थे वो 3 तबकों में तकसीम हो गए। एक तबका वो था जिसने ये कहा कि मूसा को उनका रब मिला नहीं, मूसा गुमराह हो गए, रास्ता भटक गए। उन्हीं में एक सामरी जादूगर था, सामरी जादूगर, उसने तमाम बनु इसराइल से कहा कि तुम्हारे पास जितना सोना चांदी है सब लाओ। सोना चांदी जमा करके उसने एक बछड़ा बनाया और उसको ऐसे मकाम पर रखा कि बड़ी तेजी के साथ में उसमें से एयर पास हो रही थी। तो जसदल लहू खुआर, उसके अंदर से ऐसी आवाज आने लगी जैसे कि कोई बछड़ा बोल रहा हो। तो उस तबके ने कहा कि यही हमारा माबूद है। मूसा जिस माबूद की तलाश में गए हैं वो तो उनको मिला नहीं, यही हमारा माबूद है और हम इसी की पूजा करनी शुरू कर देंगे। बनु इसराइल के 3 तबकों में से एक तबके ने उस बछड़े को अपना माबूद मानकर उसकी पूजा शुरू कर दी। ये काफिर हो गया तबका। दूसरा तबका वो था जिसने ये कहा कि नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम भटके नहीं हैं, अपने रब से मुलाकात के लिए गए हैं, वो जरूर हमारे पास वापस आएंगे और हिदायत लेके वापस आएंगे। और जो तीसरा तबका था उसने कहा कि न हम इधर की मानेंगे ना उधर की मानेंगे, मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिक, न इधर के रहेंगे ना उधर के, जो होगा वक्त बताएगा। मूसा अलैहिस्सलाम आ जाएंगे तो उनके साथ हो जाएंगे और नहीं आएंगे तो इनके साथ हो जाएंगे। ये 3 तबके हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर जब 40 रातें यहाँ मुकम्मल कर ली तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पत्थर की तख्तियों पर लिखी हुई तौरात उनको अता की। अगर आप पूरी तौरात पढ़ना चाहते हैं तो कुरान मजीद में पूरी तौरात मौजूद है। 15वां पारा सूरे बनी इसराइल, रुकू नंबर 3 से मजमून शुरू होता है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह। यहां से लेकर और अगले रुकू तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तौरात का सारा मजमून कुरान में जमा कर दिया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो तख्तियां लेकर के आए और कौम बनु इसराइल को देखा कि उसका ये हाल हो गया है कि बछड़े को पूज रहे हैं। कोई और तबके में तकसीम हो गया। एक तबका ऐसा था जो आपके दीन पर कायम था, जो आपको मानने वाला था। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया। वो तख्तियां आपने एक साइड में रखी और अपने भाई हारून की दाढ़ी पकड़ ली मारे गुस्से के कि मेरी अदम मौजूदगी में ये सब कुछ क्या करा डाला। तो हजरत हारून ने कहा कि ये इतने बिगड़े हुए लोग हैं, अगर इनको मैं ज्यादा समझाने की कोशिश करता तो मेरे भाई ये मुझे मार डालते। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हुक्म ये आया कि जिन लोगों ने बछड़े को अपना माबूद माना है वो सब खुद को कत्ल कर लें। फ़क़्तुलू अनफुसकुम, मार डालो अपने आप को, तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुलाकात के लिए, अल्लाह के साथ तन्हाई में वक्त गुजारने के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस पहाड़ के ऊपर क़याम किया था। ये बहुत छोटा सा कुब्बा आपको नजर आ रहा है, अच्छा खासा बड़ा कमरा है। ये कमरा बाद में बना दिया यहूदियों ने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने तो खुले आसमान के नीचे पहाड़ के ऊपर 40 रातें गुजारी थी, लेकिन आपकी याद में वहाँ एक कमरा बना दिया गया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर 40 रातें गुजारी थी। आप जरा इस पहाड़ का तस्वीर में देखा आपने, ये वही कोहितूर पहाड़ था जिस पहाड़ पे अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से मिलने के लिए गए थे। 30 दिन के लिए गए थे और उनको वहाँ 40 दिन लग गए थे। और उसके बाद में 40 दिन में जो उनकी कौम थी, 6 लाख लोग थे, वो उसमें कुछ लोग उन्होंने अपना ईमान बदल लिया था। और उसमें एक जादूगर था जिसका नाम सामरी था, उसने कुछ लोग इकट्ठा किया और सोने चांदी इकट्ठा की। उसने एक बुत बनाया था, एक बछड़ा बनाया था जिसका जिक्र कुरान में भी है, और कुछ लोग उसकी पूजा करने लगे थे। उसके मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम जो भी उस वक्त मौजूद थे जब अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम 30 दिन के लिए उस पहाड़ पर गए थे। और उसके बाद में उनको वहाँ 40 दिन लग गए थे। उन 10 दिनों में उनकी जो कौम थी, कुछ आदमी थे, लाखों आदमी, वो उन्होंने अपना ईमान बदल लिया था। और मैं आपको ले चलता हूँ उसी बछड़े पर जो उस वक्त के जादूगर सामरी ने बनाया था। चलिए मेरे साथ कंटिन्यू मिस्र के सफ़र पर।